Hello my dear friends, and now after understanding the details about the Indian Contract Act 1872, we begin with a brand new act of ours in our journey of the business laws under your CA foundation course, and that is the Sale of Goods Act 1930. So इस यहाँ पे हम देखेंगे what is the meaning of contract of sale, जो हमारा पहला यूनिट है इसमें देखेंगे essential elements, features of a contract of sale और differences जो है between sale and other type of agreements. Okay? तो एक basic introduction पहले देख लेते हैं क्या है that till 1930 Contract Act जो था 1872 का, which was implemented in 1872, it contained the rules and regulations relating to sale of goods also as well as partnership also. So in but the act had become very bulky, and due to this reason in 1930 all the sections and rules relating to the formation of a contract of sale, they were repealed. That means they were removed from the Indian Contract Act, and a separate act was passed under the name of the Sale of Goods Act. Okay, so jo sections 76 to 123 were removed and they were included in a completely new act. तो हमारा टाइटल है द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930. Commencement is 1st of July 1930. Extent, geographical extent is that it applies to the whole of India except the state of Jammu and Kashmir, and according to section 3, provisions of the Indian Contract Act continue to apply to contract of sale of goods except where the Sale of Goods Act provides for the contrary. इसका scope क्या है? That sale of goods deals with the sale of goods. It does not deal with mortgage. It does not deal with pledge. ये दोनों जो contracts है, they are valid contracts, but they are not covered under the Sale of Goods Act. What is the meaning of mortgage? Mortgage जो contract है, it is covered under the Transfer of Property Act of 1882. Mortgage means what? That when you need money and you give your property, your land, immovable property के जो papers है आपके, when you give that as security and borrow money on that, that is called as a mortgage contract. जो हमने किया था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मोरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष माइनर की जो केस थी, in that we have seen that minor had made a contract of mortgage. उसने mortgage deed किया था. Correct? So mortgage means giving property papers as security and borrowing money. Once the money is repaid, the papers will be got back. And pledge is contained, it's a contract, a special type of contract contained in the Indian Contract of 1872. आपने ये नहीं किया है under foundation course because these special type of contracts coming under the Indian Contract Act आप पढ़ोगे when you go to your next level, and that is the CA intermediate level. Pledge means when contract to borrow money by giving your goods as security. Okay, so mortgage में you are giving immovable property as security and borrowing money. You are giving just the possession, you are not giving the ownership. Same is the case with pledge, where you are giving goods, just the possession, not ownership, and borrowing money on it. So the Sale of Goods Act, what does it include and what it does not include? It includes every kind, it includes the sale of every kind of movable property, okay, except actionable claims and current money. So it does not include actionable claims. Actionable claim is like a debt which cannot be bought and sold, but which can be assigned to somebody else, and in case it is not fulfilled, an action can be taken on this claim. Then it does not include current money, जो current money of the country which is in circulation, whether it is the coins in circulation, whether it is the paper currency in circulation, that cannot be bought and sold. तो कोई आपको ये नहीं कह सकता कि will you sell your 2000 rupee की note
करेंसी नोट, इंडियन करेंसी नोट टू मी इन रिटर्न फॉर समथिंग, नहीं, आप करंट पैसा सेल नहीं कर सकते, आप वो एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ, ओके। सो यू कैन गिव योर 2000 रुपी नोट टू समवन और उसके बदले आप ले सकते हैं 100 रुपी नोट्स या फॉर 500 रुपी नोट्स, करेक्ट। यू कैन कन्वर्ट बट यू कैन नॉट सेल। Contracts of mortgage. Mortgage are, as I told you, mortgage is covered under the Transfer of Property Act or pledge is contained in the Indian Contract Act. Then we have what is the meaning of contract of sale. So इसमें जो हमारा section 4(1) है of the Sale of Goods Act defines contract of sale as what? They say that contract of sale is a contract whereby one party, that is the seller, transfers or agrees to transfer the property in the goods to the buyer for a price. So here you will see that there are some words which are written in blue. तो वो क्या है? Means one party. कौन है वो पार्टी? सेलर। क्या कर रहा है सेलर? सेल कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, या उसको कहते हैं सेल। जब उसने ओनरशिप ऑलरेडी ट्रांसफर कर दी बायर को, उसे हम कहेंगे सेल। या द सेलर अग्रीज टू ट्रांसफर, जिसे हम करते हैं अग्रीमेंट टू सेल। ये ऑल दीज वर्ड्स वी विल बी डिस्कसिंग इन द कोर्स ऑफ आवर डिस्कशन। अग्रीमेंट टू सेल हो सकती है। द प्रॉपर्टी इन द गुड्स, प्रॉपर्टी इन द गुड्स का मतलब है द जनरल प्रॉपर्टी इन द गुड, जिसका मतलब है ओनरशिप। टू हुम, वो किसको दे रहा है ओनरशिप? टू द अदर पार्टी। अदर पार्टी कौन है? बायर है। एंड इन रिटर्न को सेलर को क्या मिल रहा है? ही इज गेटिंग प्राइस, दैट इज मनी कंसिडरेशन। नाउ इसी डेफिनेशन से हमको मिलेंगे सेल ऑफ गुड्स के इसेंशियल एलिमेंट्स या फीचर्स। तो पहला इसेंशियल एलिमेंट है टू पार्टीज। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में है दो पार्टीज। कौन से है ये दो पार्टीज? इट इज अ बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब इंक्लूडिंग टू पार्टीज, बायर है और सेलर है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2(1), हु इज अ बायर? बायर इज द पर्सन हु बाइज और agrees to buy the goods. So even a mere agreement to buy is enough to make a person a buyer. And seller कौन है? According to section 213, seller is the person who sells or agrees to sell the goods to the buyer. तो normally तो law कहता है that there should be two parties. Bilateral contract तो होना चाहिए. And the buyer and seller should be two distinct parties. They should not be the same person. It should not happen that buyer and seller are or is the same person. वरना क्या होगा? Rights और liabilities आएंगे एक के ऊपर ही, and the law does not recognize it. But it may happen in cases where the goods are sold under execution of a court decree or by pledgee or trustee in bankruptcy. ऐसा हो सकता है, it is not impossible, लेकिन ये cases बहुत ही rare होते हैं। तो if you go to see who can be parties in a contract of sale, the law says it is contract of sale is a valid contract. इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब है that only competent parties can buy and sell, correct? Because ये contract है। तो यहाँ पे can husband and wife be parties to a contract of sale? Yes. Can two co-owners या joint owners या part owners be parties to contract of sale? Yes. Can there be a contract of sale between a partner and the firm? Yes. Partner can sell his interest in the firm to another person by sale, correct? Then partner can sell his private goods to the firm. So यहाँ पे firm है buyer और partner है seller. Similarly, partner can buy goods of the firm for personal use also. Buyer and seller हो गए, correct? But partnership property जब firm dissolve हो रही है and जो partnership property है वो distribute होती है partners के बीच में, वो sale नहीं है, okay? तो these are parties that the law says there have to be two parties. फिर आते हैं subject matter के ऊपर. What is the subject matter of a contract of sale? Subject matter of contract of sale is goods, correct? तो goods का मतलब क्या है? So section 2(7) of the Sale of Goods Act says goods means every kind of movable property except actionable claims and current money.
जो मैंने आपको बताया. Actionable claims cannot, current money which is in circulation cannot be bought and sold. Okay. Actionable claim is a claim which if it is not fulfilled can give rise to an action against the person. तो अगर चेक है आपका, चेक अगर आप, nobody can buy and sell a check, correct? Nobody can buy and sell a debt, लेकिन वो असाइन हो सकता है किसी और को. और अगर वो चेक डिसऑनर होता है, then can an action be taken? Yes. Okay. Then जो गुड्स है दे इंक्लूड एवरी काइंड ऑफ मूवेबल गुड्स. तो अगर ग्रोइंग क्रॉप्स हो, ट्रीज हो, बिल्डिंग्स हो, एनीथिंग विच इज फिक्स्ड एंड अटैच्ड टू द ग्राउंड हो, तो द लॉ सेज इट कैन बी बॉट एंड सोल्ड एज गुड्स अंडर सेल ऑफ गुड्स प्रोवाइडेड दे आर सिवियर्ड, दैट इज दे आर कट फ्रॉम द ग्राउंड एंड देन सोल्ड. सो गुड्स फॉर्म द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. तो किस तरह से है ये गुड्स, what are the types of goods which are included? तो under section 27 of the Sale of Goods Act, what all are included as goods? पहले तो है stocks and shares can be bought and sold as goods, growing crops, grass and things which are attached to and forming part of the land, they can become subject matter of sale provided they are severed and cut. आपके trademarks, copyrights, goodwill, patent, these can also be bought and sold as goods. Electricity, water, gas, then you have metal and stone in the unqualified form. Unqualified state का मतलब है when it is cut. जो stone, आप stone कहाँ से लेते हो? You take it from a quarry, a stone quarry. Stone quarry में क्या होता है? The stones are, they may be forming part of a mountain. So the mountain cannot be bought and sold because it is attached. So वो क्या करते हैं? Cut करते हैं quarry में, and then that is removed. Mountain तो fixed है, but when the stone is cut, then it can be bought and sold because now it is made movable. Metal, when it is extracted from the earth in the process of mining, then that can be bought and sold. Interest of a partner in a partnership firm, जब हम partnership करेंगे, that time also we will understand this, that how a partner can also transfer his share of the partner, his interest in the partnership firm by sale, by mortgage and creation of a trust. Then fixtures and buildings when sold as materials which have been agreed to be severed before the sale. अगर कोई building है which is standing on the land, when you are saying I am buying the building, if it is not going to be cut, if it is not going to be demolished from the ground, it is going to be sold as a part of the land. तो वो it will not come under sale of goods क्योंकि वो बन जाएगी immovable property. तो अगर आप कह रहे हो that the building, only the building and not the land has been bought, इसका मतलब है the building will have to be demolished. Okay, it has to be severed from the ground, और severed from the ground का मतलब है demolished. तो ऐसे कई लोग होते हैं who buy these demolished buildings. क्यों? उसमें निकलता है मेटल, जो स्लैब होता है उसका मेटल निकलता है, उसमें आएंगे विंडो पेन्स, डोर्स, हैंडल्स, वो सब आता है. ऑल दैट सीमेंट ब्रिक्स इन द क्रश्ड फॉर्म, दैट इज द रंबल विच कैन ऑल्सो बी यूज्ड. जो बिल्डिंग का फाउंडेशन बनता है, ऑल दैट इज यूज्ड फॉर दैट. सो देयर आर पीपल हु बाय एंड सेल दीज डिमोलिश्ड बिल्डिंग्स एज वेल. ओके, देन यू हैव ओल्ड कॉइन्स और ओल्ड करेंसी नोट्स which are no longer in use and are considered to be antiques. पुराने ऐसे कॉइन्स है या जो भी आपकी कंट्री की या बाहर के कंट्री की जो कॉइन्स है या मनी है जो अभी एंटीक है, जो अभी सर्कुलेशन में है ही नहीं, यूज में नहीं है, दैट कैन बी बॉट एंड सोल्ड विथ मनी. येस. एंड फॉरेन करेंसी, अगर जब आप बाहर जा रहे हो, विदेश जा रहे हो, दैट टाइम यू नीड द फॉरेन करेंसी, तब आप क्या करते हो? दैट टाइम यू बाय द फॉरेन करेंसी. ओके, सो दैट इज अलाउड एंड ऑल दैट इज कमिंग अंडर गुड्स इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. फिर हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गुड्स आर देयर? बेसिकली देर आर 3 टाइप्स ऑफ गुड्स. एंड विच आर दीज गुड्स? पहले है एग्जिस्टिंग गुड्स. एग्जिस्टिंग गुड्स का मतलब क्या है? तो 3 टाइप्स ऑफ गुड्स है. एग्जिस्टिंग गुड्स, फिर है फ्यूचर गुड्स एंड कंटेंजेंट गुड्स. Existing goods are those goods which are already in existence, which have been produced, which have been manufactured. उन्हें कहते हैं existing goods. तो ये existing goods are of 3 types.
They are specific, existing, ascertained, specific, existing and unascertained existing goods. Okay, तो ये क्या है? Unascertained existing goods वो है who are forming part of the lot. वो अभी तक हमने आइडेंटिफाई नहीं किए हैं, हमने डिसाइड नहीं किया है कि इन सारे गुड्स में से हमको कौन से चाहिए. वी हैव नॉट सिलेक्टेड, वी हैव नॉट आइडेंटिफाइड द गुड्स. तो वो गुड्स विच आर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लॉट आर कॉल्ड एज अनअसर्टेन गुड्स. उसमें से जब हम स्पेसिफाई करते हैं, असर्टेन करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, उसे हम कहेंगे असर्टेन्ड स्पेसिफिक गुड्स. तो एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं दैट व्हेन यू गो टू अ शॉप, व्हेन यू गो टू अ डिपार्टमेंटल स्टोर जहाँ पे सेल्फ सर्विस है, तो आप देखते हैं शेल्फ्स में देयर आर मेनी गुड्स विच हैव बीन प्लेस्ड. वो पूरे के पूरे गुड्स क्या है? दे आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, दे आर ऑलरेडी विद द सेलर एट द टाइम ऑफ सेल. करेक्ट? वो सब डिस्प्ले पे जो है गुड्स, दे आर ऑल अनअसर्टेन्ड. क्यों? क्योंकि अभी तक आपने ये डिसाइड नहीं किया है, सिलेक्ट नहीं किया है कि इसमें से आपको क्या चाहिए. ओके, सो ऑल द गुड्स विच आर देयर इन द शॉप आर अनअसर्टेन्ड एग्जिस्टिंग गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लॉट. तो जब आप डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं, नाउ यू डिसाइड वो रैक्स में से दैट यू आर लुकिंग फॉर लेट्स से टूथपेस्ट. तो टूथपेस्ट काउंटर पे जब आप जा रहे हो तो आउट ऑफ द होल लॉट ऑफ गुड्स आपने क्या किया है अभी? नाउ यू हैव असर्टेन्ड कि आपको कौन सी ब्रांड की टूथपेस्ट लेनी है. फिर आप वहाँ उस शेल्फ्स पे गए, द टूथपेस्ट ऑफ योर चॉइस एंड योर ब्रांड वहाँ पे है 30 टूथपेस्ट. तो आउट ऑफ द होल लॉट व्हाट हैव यू डन? यू हैव असर्टेन कि आपको क्या चाहिए, एंड उसमें से यू आर नॉट गोइंग टू टेक ऑल द 30, राइट? यू आर गोइंग टू टेक मे बी 2 or 3 या 1 डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट. वो जब आपने सिलेक्ट की, वहाँ पे भी आप देखते हैं इट इज़ द सेम ब्रांड यू वांट, इट इज़ द सेम क्वांटिटी यू वांट, एवरीथिंग इज सेम. लेकिन फिर भी आप देखते हैं उसका सील कहीं ओपन नहीं है, कोई कवर खराब है क्या, नहीं है, एक्सपायरी देखते हो, ये सब आप देखते हो और उसके बाद आप सिलेक्ट करके रखते हो आपकी बास्केट में या आपकी ट्रॉली में. जो टूथपेस्ट 30 लॉट में से आपने सिलेक्ट की एंड यू पुट इट विच इज गोइंग टू बी your subject matter in this contract of sale, they are now called as specific goods. Okay? तो पहले थे सब अनअसर्टेन, फिर आपने असर्टेन किया कि मुझे टूथपेस्ट लेना है इस ब्रांड का. वहाँ पे आप गए तो वहाँ पे देवर 20-30 टूथपेस्ट जो आपको चाहिए थे. आप पूरी तो पूरी नहीं ले सकते, तो वो आपने असर्टेन की और उसमें से सिलेक्ट करके आइडेंटिफाई करके आपके पास ले ली. Those are the ones only which you are going to buy. So those are specific. Normally you will find that the word specific ascertained goods have been used interchangeably. So they are normally बोलते समय या लिखते समय people are generally saying specific ascertained goods. That's okay. Then we have second is the future goods. Future goods are those which the seller does not have with him at the time of the contract of sale. तो वो क्या है? Either they are not yet manufactured, either they are not yet produced, या है लेकिन सेलर के पास अब भी नहीं है शॉप में सेल करने के लिए, उन्हें हम कहेंगे फ्यूचर गुड्स. ओके, सो फ्यूचर गुड्स की ओनरशिप तो आप दे ही नहीं सकते अभी. क्यों? You cannot sell them. Why? Because they are not there only just now. Correct? तो अगर आप कहते हैं that there are apples which are going to ripe in the orchards in the month of November, तो ये क्या है? The apples have already been planted and everything. The trees are already there in the orchard. लेकिन you cannot sell them now. क्यों? Because यहाँ पे the goods are not yet completely ripe and produce. They will ripen after a few months. तो वो क्या है? Future goods है. Then you have contingent goods. Contingent goods क्या है? Contingent goods are those goods which are the acquisition of these goods by the seller depends on a contingency. यहाँ पे होती है एक contingency या where for example if seller आपको कहता है okay I will sell these to you
इफ इन केस, ए कहता है बी को, आई विल सेल दीज गुड्स टू यू प्रोवाइडेड सी टू हुम आई हैव ऑफर्ड दीज गुड्स डज नॉट बाय. सो यहाँ पे क्या है, the sale of the goods from A to B depends upon a contingency whether C will buy or no. अगर C वो goods A से buy करता है then A will not be able to sell them to B. लेकिन अगर C refuse करता है to buy them from A, then A can sell these goods to B. So इन्हें हमने जो contingent contract किया है उसी का ये एक part है, correct? So these are contingent जिनका performance will depend upon a contingency. फिर third essential element in a contract of sale is price. Price according to section 210 means the money consideration for the sale of goods. तो the price paid other than in money is not sale. तो अगर आप कहते हैं that A is giving B mangoes and in return B is selling apples to A, तो वो क्या हो रहा है, एक दे रहा है मैंगोज, इन रिटर्न उसको मिल रहे हैं एप्पल्स. तो दिस इज नॉट सेल. ये क्या हुआ, ये तो बार्टर हुआ. सो ये दिस इज नॉट कंसिडर्ड एज सेल. ए ने सेल किए एप्पल्स बी को और इन रिटर्न बी ने उसको कोई भी पैसा नहीं दिया. ए ने कहा ये मेरी तरफ से गिफ्ट है आपको, डोंट गिव मी एनीथिंग इन रिटर्न. दिस विल ऑल्सो नॉट बी कंसिडर्ड एज अ सेल बिकॉज दिस विल बी रिगार्डेड एज अ गिफ्ट बिकॉज देर इज नो मनी कंसिडरेशन. लॉ कहता है इफ in return for goods I give part money, part goods, is it okay? Yes, that is okay. तो when like for example जब आप जाते हो, you have a old car which you want to sell and you also want to buy a new car. तो जब आप न्यू कार देखने के लिए शोरूम में जाते हैं and वहाँ पे कंपनी वाले कहते हैं that the cost of the new car is 6 lakhs. तो आप कहते हैं कि नहीं पहले तो मुझे अपनी पुरानी कार बेचनी पड़ेगी, उसका पैसा आई विल पुट हियर. तो कंपनी वाले कहते हैं नो प्रॉब्लम, वी विल टेक योर ओल्ड कार, वी आर रेडी टू वैल्यूएट एंड बाय योर ओल्ड कार. ओके, तो न्यू कार की कीमत है 6 lakhs, आपकी पुरानी कार की वैल्यूएशन आती है 2 लाख की. तो वो कंपनी वाले कहते हैं आपकी ओल्ड कार भी हमको दीजिए. तो पार्ट गुड्स हमने ले लिए, तो आउट ऑफ 6 lakhs वी विल माइनस द 2 lakhs which is the valuation of your old car. Now what are you going to give the company? आपकी old car and 4 lakh rupees. तो ये क्या है? In return for the new car, you gave them your old car as well as the balance money. तो part goods, part money. Can this become, will this be considered as a valid consideration and in the Sale of Goods Act? Law कहता है ठीक है. So goods in exchange of goods, barter, not sale. Goods given free of cost as a gift, not sale. Part goods, part money, sale. Goods given in return for money consideration, sale. फिर है next element, transfer of property. Property का मतलब है ownership. तो ownership दे रहा है seller to the buyer. Okay? तो जब ये ownership दे रहा है, either वो at the time of contract जब ओनरशिप ट्रांसफर कर देता है बायर को, उसे कहते हैं सेल. जब सेलर हैज ऑलरेडी गिवन एब्सोल्यूट ओनरशिप टू द बायर. लेकिन ऐसा भी हो सकता है दैट कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया लेकिन सेलर इज नॉट गिविंग द ओनरशिप टू द बायर एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. सेलर कहता है बायर को कि मैं आपको ओनरशिप अभी नहीं दूंगा, आई विल गिव यू द ओनरशिप समटाइम इन द फ्यूचर आफ्टर सर्टेन कंडीशंस हैव बीन फुलफिल्ड. तो ये है अग्रीज टू ट्रांसफर. तो इसे हम कहेंगे अग्रीमेंट टू सेल. ओनरशिप अभी ट्रांसफर नहीं हुई है. ओके, तो जब हम कहते हैं ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है, हियर इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल देयर इज ट्रांसफर ऑफ जनरल प्रॉपर्टी इन द गुड्स. जनरल प्रॉपर्टी का मतलब है एब्सोल्यूट टोटल ओनरशिप. ऑपोजिट टू स्पेशल प्रॉपर्टी इन द गुड्स. स्पेशल प्रॉपर्टी का मतलब है जहां पे आप दे रहे हो पोजेशन, क्या, कस्टडी. यू आर गिविंग जस्ट द फिजिकल कस्टडी ऑफ द गुड्स बट यू आर नॉट गिविंग द ओनरशिप. उसे कहते हैं जनरल प्रॉपर्टी.
सेल ऑफ गुड्स में हम सीखते हैं अबाउट जनरल प्रॉपर्टी इन द गुड्स वेयर सेलर इज गिविंग ओनरशिप। जब जो मैंने आपको बताया प्लेज, फॉर एग्जाम्पल प्लेज में क्या हो रहा है, यू आर गिविंग द गुड्स एंड बोरोइंग मनी, आप पोजेशन दे रहे हैं गुड्स का बट यू आर नॉट गिविंग द ओनरशिप, यू आर गिविंग द गुड्स ओनली एज सिक्योरिटी एंड बोरोइंग मनी। जिस दिन आप वो पैसा लौटाते हो योर गुड्स विल कम बैक टू यू बिकॉज यू आर द ओनर। तो आप दे रहे हो ओनली पोजेशन एंड नॉट द ओनरशिप। सो सेल ऑफ गुड्स में हम सीखते हैं ट्रांसफर ऑफ जनरल प्रॉपर्टी, दैट इज टोटल ओनरशिप। Other elements are all the other essentials of a valid contract of sale. Valid contract होने चाहिए जो mentioned है under section 10, section 29 and 56. Then contract of sale can either be an absolute contract or it can be a conditional contract. Absolute contract वो होता है वहाँ जहाँ the seller is giving the ownership to the buyer without any kind of conditions. Conditions कुछ भी उसने नहीं डाली, एब्सोल्यूट है। या कंडीशनल हो सकते हैं, कंडीशनल जहाँ पे सेलर इज पुटिंग अ कंडीशन ऑन द बायर कि ओनरशिप आपको ट्रांसफर होगी ओनली इफ यू डू दीज थिंग्स, दैट इज वन ऑफ द कंडीशंस कैन बी पेमेंट ओनली आफ्टर यू हैव पेड मी, ओनली देन द ओनरशिप विल बी गिवन। तो ये क्या है, कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है। बाकी छोटे छोटे पॉइंट्स हम देखेंगे यहाँ पे। मर्केंटाइल एजेंट जिसका रेफरेंस हम करेंगे जब हम सीखेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, हु कैन ट्रांसफर प्रॉपर्टी। तो मर्केंटाइल एजेंट कौन है, ही इज एन एजेंट हैविंग द इन द कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस एज सच एजेंट ही हैज एन अथॉरिटी, सो ही इज अ रेगुलर मर्केंटाइल एजेंट। मर्केंटाइल का मतलब क्या है, द पर्सन, मर्केंटाइल का मतलब है रिलेटेड टू मर्चेंट्स, मतलब trading, buying and selling. Okay, so mercantile agent is not the owner, but he can still sell the goods and transfer good ownership to a buyer. He has a right to sell goods, he can collect goods for the purpose of sale, he can buy goods, he can raise money on security of the goods. तो ये सभी rights उसको दिए गए हैं। अगर ये वो सभी कर सकता है then he is called as a mercantile agent. वो buy कर सकता है goods as an agent, he can sell the goods on behalf of the principal, he can consign the goods, या अगर पैसे की ज़रूरत है he can even pledge the goods and borrow money. Then insolvent है, who is an insolvent? Insolvent is a person who has ceased to pay his debts in the ordinary course of business or cannot pay his debts as they became overdue, whether he has committed an act of insolvency or not. ये insolvent जो word है हम देखेंगे कहाँ पे, in case buyer insolvent होता है तो consequences क्या है, और अगर seller unpaid हो गया है तो and we'll understand if the seller becomes insolvent फिर क्या होता है। so ये concept है insolvency. And then is something called as document of title. तो क्या है ये document of title to goods? Document of title, see document in law means any written evidence, इसे हम कह सकते हैं document. Title का मतलब है ownership. So any you can say proof of ownership in writing is document of title. Okay, so जिसका नाम लिखा जाता है document of title पे, he is regarded as the owner of those goods. तो जिसके पास है document of title, he is treated as the owner. जब वो दिखाता है उसका document of title ownership, तो उसको मिलेगी अनकंडीशनल डिलीवरी ऑफ द गुड्स। अगर बायर के नाम पे है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, बायर गया और सेलर ने गुड्स, ही हैज सेंट द गुड्स इन द रेलवे, जब बायर वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल लेके जाता है रेलवे अथॉरिटीज़ के पास, शोइंग दैट ही, उसका नाम है वहाँ पे एंड ही इज़ द ओनर, द रेलवे अथॉरिटीज़ बिना कोई कंडीशन के विल हैव टू गिव द बायर द डिलीवरी ऑफ द गुड्स। जिसके पास है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, ही कैन ट्रीट द गुड्स एज हिज ओन, ही कैन सेल द गुड्स, ही कैन कंसाइन द गुड्स, ही कैन प्लेज द गुड्स, ही कैन डू एनीथिंग। ये डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, कैन इट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर इजिली? यस। इस पे क्या करना पड़ता है, इट कैन बी ट्रांसफर्ड बाय मियर एंडोर्समेंट और बाय डिलीवरी। एंडोर्समेंट का मतलब है साइनिंग, एक्नॉलेजिंग इट, साइनिंग इट एंड गिविंग इट। तो अगर डॉक्यूमेंट पे नाम है मेरा,
एंड मुझे अभी ओनरशिप ऑफ द गुड्स ट्रांसफर करना है सी को, तो मैं ऑन द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल आई विल राइट ओवर देयर ट्रांसफर्ड टू और सी का नाम और मेरी सिग्नेचर, और देन आई हैंडेड डिलीवरी दे देती हूँ मैं टू सी. नाउ सी विल बी ट्रीटेड एज द ओनर एंड सी कैन गो एंड टेक अनकंडीशनल डिलीवरी ऑफ हिज गुड्स. ओके, देन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो हमको दिए गए हैं इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. पहला है बिल ऑफ लैडिंग. बिल ऑफ लैडिंग क्या है? जब गुड्स आर सेंट बाय द सेलर टू द बायर वाया अ शिप, दैट इज वाटर ट्रांसपोर्ट शिप से अगर जा रहे हैं गुड्स, देन द सेलर टेक्स द बिल ऑफ लैडिंग, जो एक डॉक्यूमेंट है रिगार्डेड एज अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल इन द नेम ऑफ द बायर. तो इट इज अ डॉक्यूमेंट विच एक्नॉलेजेस रिसीट ऑफ गुड्स ऑन बोर्ड द शिप. सेलर लाता है अपने यहाँ से गुड्स, वो ऑन बोर्ड प्लेस हो जाते हैं इनसाइड द शिप. इट इज साइंड बाय द कैप्टन ऑफ द शिप और हिज ड्यूली ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, एंड इट स्टेट्स, उसके अंदर क्या है, इट स्टेट्स द टर्म्स इन विच द गुड्स वर डिलीवर्ड एंड रिसीव्ड बाय द शिप. By endorsing it, its holder can transfer the property in the goods to which it relates, and by parting with it, he parts not only with the property in the goods but also with its possession. तो ये जो जिसका नाम लिखा गया है, अगर सेलर ने बिल ऑफ लैडिंग खुद के नाम पे लिया है, लेटर वो उसको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा बायर को, क्योंकि अभी उसने ही हैज सोल्ड द गुड्स टू द बायर, और बायर जाके गुड्स रिसीव करेगा फ्रॉम द पोर्ट, फ्रॉम द शिपिंग अथॉरिटीज. तो सेलर क्या कर सकता है, उस पर सिर्फ एंडोर्स करके बायर को ट्रांसफर कर सकता है. नाउ बायर इज रिगार्डेड एज द ओनर, और वो पोजेशन भी ले सकता है ऑफ द गुड्स. डॉक वारंट है अगला डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल. इट इज अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय द डॉक ओनर. जो डॉक यार्ड होता है वहाँ उसका जो ओनर होता है उसको कहेंगे हम डॉक ओनर. तो ये ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसपे डिटेल्स दिए गए हैं ऑफ द गुड्स एंड सर्टिफाइंग दैट द गुड्स आर हेल्ड टू द ऑर्डर ऑफ द पर्सन नेम्ड इन इट और द एंडोसी. इट ऑथराइजेज द पर्सन होल्डिंग इट टू रिसीव पोजेशन ऑफ द गुड्स. तो जिसका नाम होगा डॉक वारंट पे, ही विल बी गेटिंग द अनकंडीशनल डिलीवरी ऑफ द गुड्स. फिर है वेयर हाउस कीपर या वॉर्फिंगर सर्टिफिकेट. वॉर्फ का क्या, वेयर हाउस को तो आप पता है, वेयर हाउस जहाँ पे गुड्स रखे जाते हैं, एंड वॉर्फ इज एन एरिया अराउंड द सी. तो अगर गुड्स वेयर हाउस में है या वॉर्फ में रखे गए हैं, तो वहाँ वेयर हाउस कीपर हु इज इन चार्ज ऑफ द वेयर हाउस या वॉर्फ के जो इंचार्ज है उनका वॉर्फिंगर, उनका सर्टिफिकेट लगता है. So ये document is issued by the warehouse keeper or the wharfinger stating that the goods specified in the document are in his warehouse or in his wharf. Railway receipt जो है, it is a railway receipt मतलब जब seller has sent the goods by railways and he has obtained this document. It is a document issued by the railways acknowledging the receipt of the goods. It is to be presented by the holder या और consignee, यानी buyer will be the holder of this. उसको दिखाने पड़ेंगे at the destination. ट्रेन पहुंच गई स्टेशन, तो बायर के पास है ये डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल रेलवे रिसीट. बायर को चाहिए उसके गुड्स, तो बायर जाएगा स्टेशन, ये डॉक्यूमेंट दिखाएगा और अपने गुड्स ही विल कलेक्ट फ्रॉम द रेलवे अथॉरिटीज. और डिलीवरी ऑर्डर. डिलीवरी ऑर्डर इज अ डॉक्यूमेंट विच इज कंटेनिंग एन ऑर्डर by the writer to the person जिसके पास goods है, to ordering him to give the delivery of the goods to the buyer जिसका नाम उस order में लिखा है. तो यहाँ पे goods अगर seller के पास नहीं है, buyer के पास नहीं है, goods है carrier के पास. carrier मतलब जो carry कर रहा है goods from the seller to the buyer. तो अगर goods है carrier के पास, तो seller लिखता है order to carrier कि बायर जिसका नाम मैंने इस ऑर्डर में लिखा है, जब वो आएगा उसको अनकंडीशनल डिलीवरी दे दो, ये मेरा ऑर्डर है आपको, इसे कहते हैं डिलीवरी ऑर्डर. तो दीज आर डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल, 5 डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल मेंशन्ड इन द सेल ऑफ गुड्स एक्ट. डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल इज अ डॉक्यूमेंट विच इज लाइक अ ओनरशिप डॉक्यूमेंट. इट इज प्रूफ कि जिसका भी नाम उस डॉक्यूमेंट पे लिखा है, ही इज ट्रीटेड एज द ओनर, उसको मिलेगी अनकंडीशनल डिलीवरी ऑफ द गुड्स एंड ही ट्रीट्स द गुड्स एज हिज ओन. ही कैन डू एनीथिंग विद द गुड्स. उसको मिलते हैं जस्ट राइट ऑफ जस्ट इन रेम. करेक्ट.
लेकिन ये डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल जो है इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अनदर डॉक्यूमेंट, दैट इज डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल. डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल इजीली ट्रांसफरेबल है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन बाय एंडोर्समेंट एंड बाय डिलीवरी. लेकिन डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल ऐसा डॉक्यूमेंट है जो which cannot be easily transferred by endorsement and delivery. Okay, it cannot be transferred like this. Like you take an example of a share certificate, you cannot just transfer by endorsement. So there is a difference between document showing title and document of title. Then a contract of sale जो हमने definition देखा था under section 4.1, it is a contract whereby the seller ट्रांसफर्स और अग्रीज टू ट्रांसफर. तो ये ट्रांसफर और अग्रीमेंट टू ट्रांसफर क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैन आइदर बी अ सेल और अग्रीमेंट टू सेल, दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट्स है. सेल का मतलब है where the ownership in the goods is transferred from the seller to the buyer. और अग्रीमेंट टू सेल का मतलब है ownership is not yet transferred from the seller to the buyer. Ownership will be transferred at a future date on the fulfillment of certain conditions. So in case it is a sale, so who is the owner? Yes, buyer is the owner. And in case of agreement to sell, who is the owner? Seller, because अभी तक ownership transfer नहीं हुई है. In detail में हम देखते हैं इनके डिफरेंसेस बिटवीन अ सेल एंड एन अग्रीमेंट टू सेल. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पहला डिफरेंस है. पहले तो सेल में प्रॉपर्टी इन द गुड्स passes from the seller to the buyer immediately at the time of the contract itself. सेलर ने ऑलरेडी ओनरशिप दे दी बायर को. लेकिन अग्रीमेंट टू सेल में द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज टू टेक प्लेस एट अ फ्यूचर डेट या ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस. सेल इज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट. क्यों? बिकॉज ओनरशिप ऑलरेडी ट्रांसफर हो गई है टू द बायर. लेकिन अग्रीमेंट टू सेल इज एग्जीक्यूटरी. क्यों? क्योंकि अभी तक सेलर ने ओनरशिप ट्रांसफर नहीं की है. कब करेगा? फ्यूचर डेट पे. कब? व्हेन सर्टेन कंडीशंस विल बी फुलफिल्ड. लाइक सेलर ने कंडीशन डाल दी बायर को, पहले मुझे पैसा दे दो फिर आई विल गिव यू द ओनरशिप. नाउ इट इज अ कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट, करेक्ट, ऑफ सेल. ओनरशिप ट्रांसफर होगी ओनली व्हेन द बायर गिव्स द मनी. Sale can only be in case of existing or specific goods only. जो हमने existing है, जो हमने specify किए हुए हैं, only those goods identify किए हैं, ascertain किए हैं, आपने select करके रखे हैं, you have selected them, identified them, only those goods can be sold under contract of sale. लेकिन अग्रीमेंट टू सेल में ऐसा भी हो सकता है कि अभी तक गुड्स मैन्युफैक्चर नहीं है, दे आर फ्यूचर गुड्स, दे आर कंटेंजेंट गुड्स, उनका ऑल्सो यू कैन मेक एन अग्रीमेंट टू सेल, क्योंकि ओनरशिप कब करनी है? फ्यूचर में करनी है, करेक्ट. देन सेल में लॉ कहता है रिस्क फॉलोज ओनरशिप. मतलब जो अगर गुड्स आर डैमेज्ड या डिस्ट्रॉयड या कुछ भी लॉस हो जाता है with relation to the goods, who will bear the loss? रिस्क कौन बेयर करेगा? ओनर बेयर करेगा. तो इन केस ऑफ सेल ओनर कौन है? बायर है. तो who will bear the loss unless otherwise agreed? बायर, करेक्ट. तो ऐसा भी हो सकता है that the buyer is the owner, लेकिन गुड्स जो है अभी तक सेलर के पास है. सेलर ने सिर्फ ओनरशिप ट्रांसफर की बायर को, पोजेशन मतलब फिजिकल कस्टडी, गुड्स अभी तक सेलर के पास ही है. ओके, तो अगर नाउ दोनों के बीच में ऐसा कोई अग्रीमेंट नहीं है, then the law will say that in the absence of agreement to the contrary, अगर उन गुड्स को कुछ लॉस हो जाता है, ओनर विल बेयर लॉस. तो यहाँ पे गुड्स सेलर के गोडाउन में है बट बायर इज द ओनर, और अगर कुछ हो जाता है गुड्स को विदाउट एनी फॉल्ट ऑफ बायर एंड सेलर, बायर विल स्टिल बेयर द लॉस क्योंकि बायर इज द ओनर. वैसे ही इन केस ऑफ एन अग्रीमेंट टू सेल, हु इज द ओनर? Seller is the owner. So unless there is agreement to the contrary between them, whoever is the owner will bear the loss in case of damage. Okay? लेकिन अगर buyer owner है, goods seller के गोडाउन में है और उन दोनों के बीच में agreement होता है कि बायर कहता है आई एम द ओनर, यस, लेकिन गुड्स आपके पास है, अगर गुड्स को कुछ हो जाता है नुकसान,
you will bear the loss, then seller will bear the loss. इसीलिए I had said unless there is a agreement to the contrary. Okay, so risk follows ownership. Then what happens in case of breach? अगर सेल है and the buyer fails to pay the price of the goods, or if there is a breach of contract by the buyer, the seller can sue for the price even though the goods are still in his possession. अगर बायर को ओनरशिप दे दी लेकिन पोजेशन फिजिकल कस्टडी गुड्स की किसके पास है, सेलर के पास है, और बायर ने अभी पैसे नहीं दिए या बायर हैज कमिटेड अ ब्रीच, सेलर क्या कर सकता है, ही कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट द बायर फॉर द प्राइस ऑफ द गुड्स. अग्रीमेंट, क्योंकि ओनरशिप इज ऑलरेडी विद द बायर. अग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है, हु इज द ओनर, सेलर इज द ओनर, एंड इन केस देर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय द बायर, द सेलर कैन ओनली स्यू फॉर डैमेजेस, ही कैनॉट स्यू फॉर द प्राइस इवन दो द गुड्स आर इन द पोजेशन ऑफ द बायर. क्यों, क्योंकि यहाँ ओनर कौन है, सेलर ही ओनर है. अगर गुड्स बायर के पास है एंड द सेलर इज द ओनर एंड बायर कमिट्स अ ब्रीच, द सेलर कैन ओनली क्लेम डैमेजेस. लेकिन सेल में क्या होता है, बायर इज द ओनर, गुड्स आर विद द सेलर एंड बायर हैज कमिटेड अ ब्रीच, द सेलर कैन फाइल अ सूट फॉर द प्राइस ऑफ द गुड्स. देन इज द राइट टू रीसेल. रीसेल का मतलब है सेल अगेन. The seller cannot, in case of a sale, a seller cannot resell the goods except in certain cases जो हम आगे देखने वाले हैं. In case of वो unpaid seller है, then the subsequent buyer does not acquire title of the goods in this case. अगर seller ने already ownership transfer की है buyer को, अगर goods उसके पास है, unless he is an unpaid seller, he cannot sell those same goods to somebody else, to a new buyer, एंड वो उसको ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर सकता. क्यों, बिकॉज ही हैज ऑलरेडी गिवन द ओनरशिप ऑफ द गुड्स टू द फर्स्ट बायर. इन केस ऑफ अग्रीमेंट टू सेल, द बायर हु टेक्स द गुड्स फॉर कंसिडरेशन एंड विदाउट नोटिस ऑफ प्रायर अग्रीमेंट, he does, and if he does so, he gets a good title. In such a case, the original buyer can sue the seller only for damages. अगर सिर्फ agreement to sell हुआ है, माने कौन है ओनर, सेलर ओनर है, और अगर सेलर ने वही गुड्स किसी नए बायर को सेल कर दिए, देन इज इट अलाउड, यस इट इज अलाउड. लेकिन अगर ये सेल है और ओनरशिप ऑलरेडी ट्रांसफर की गई है टू द बायर, कैन द सेलर सेल द सेम गुड्स अनलेस ही इज एन अनपेड सेलर टू अ न्यू बायर? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता. देन what are the rights created? पहले तो in case of a sale, it is a contract plus conveyance and creates jus in rem. Jus in rem का मतलब क्या है? Means right against a thing. It can be exercised against the whole world. अभी सेल में ownership is with the buyer. बायर के पास गुड्स है, उसको पूरे राइट्स है ऑफ ओनरशिप ऑन द गुड्स. वो जो चाहे उन गुड्स के साथ कर सकता है, कोई उसे रोक नहीं सकता. तो वो उसने अक्वायर किए हैं राइट्स अगेंस्ट द थिंग दैट इज द गुड्स, और अगर कोई भी उसको डिस्टर्ब करता है, ही कैन फाइल अ केस. अग्रीमेंट टू सेल में क्या है? इट इज मियरली अ कॉन्ट्रैक्ट, प्योर एंड सिंपल, एंड इट इज क्रिएटिंग व्हाट, जस्ट इन पर्सोनम. क्यों? क्योंकि अभी तक सेलर हैज नॉट ट्रांसफर्ड द ओनरशिप टू द बायर. तो वो क्या होगा यहाँ पे ओनली अगर कुछ कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस कंप्लीट नहीं हुआ है, बिकॉज अभी तक ओनरशिप गई नहीं है टू द बायर. तो अगर कुछ हो जाता है बायर और सेलर के बीच, तो दे कैन स्यू ईच अदर, फाइल सूट्स अगेंस्ट ईच अदर, उसे कहते हैं पर्सोनम. अगर इंसॉल्वेंसी होती है, इन केस इट इज अ सेल, यानी हु इज द ओनर, बायर इज द ओनर, और बायर खुद ही इंसॉल्वेंट बन जाता है. अगर सेल है, बायर ओनर है, लेकिन गुड्स सेलर के पास है, एंड बायर हिमसेल्फ हैज बिकम इंसॉल्वेंट. तो बायर ओनर भी है लेकिन अभी इंसॉल्वेंट हो गया, लेकिन गुड्स उसके पास नहीं है, गुड्स आर विद द सेलर. तो जब कोई इंसॉल्वेंट बनता है तो ऑफिशियल असाइनी और रिसीवर आएंगे, करेक्ट, दे आर अपॉइंटेड बाय द कोर्ट. वो आके पूरे के पूरे इंसॉल्वेंट पर्सन के जो उसके गुड्स या प्रॉपर्टी है सब दे कैन सील इट ऑफ. तो यहाँ पे अगर बायर ओनर है और बायर इंसॉल्वेंट बन गया है, लेकिन गुड्स सेलर के पास है, ऑफिशियल असाइनी और रिसीवर, गुड्स किसको बिलोंग करते हैं, बायर को,
Can they go to the seller and take the custody of the goods? Yes, because buyer is the owner. लेकिन agreement to sell में owner is seller. अगर ओनर सेलर है और लेकिन गुड्स बायर के पास है और बायर इंसॉल्वेंट बन जाता है और जब ऑफिशियल असाइनी और रिसीवर आएंगे, कैन दे टेक दोज गुड्स इनटू कस्टडी? नहीं. क्यों? बिकॉज द गुड्स बिलोंग टू द सेलर, दो दे आर विद द बायर. वो अभी गुड्स नहीं रख सकते. देन इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ द सेलर, अगर ये सेल है और सेलर, सेल का मतलब कौन ओनर है? बायर. बायर इज द ओनर लेकिन द गुड्स आर विद द सेलर. बायर के पास ओनरशिप है लेकिन पोजेशन सेलर के पास है, उसके गोडाउन में पड़े हैं वो गुड्स, और अभी सेलर ही इंसॉल्वेंट बन जाता है. ऑफिशियल असाइनी आएंगे, क्या वो ऑफिशियल असाइनी और रिसीवर कैन दे टेक दोज गुड्स विच आर इन द सेलर्स गोडाउन इनटू कस्टडी विच एक्चुअली बिलोंग टू द बायर? नहीं. बायर आके वो गुड्स ले जा सकता है बिकॉज वो ओनर है उन गुड्स का. लेकिन ये अग्रीमेंट टू सेल अगर है और सेलर ओनर है, सेलर के पास गुड्स नहीं है, गुड्स आर विद द बायर एंड सेलर हिमसेल्फ हैज बिकम इंसॉल्वेंट, ऑफिशियल असाइनी आएंगे और कैन दे गो टू द बायर एंड टेक द गुड्स फ्रॉम द बायर? येस. व्हाई? बिकॉज द गुड्स बिलोंग टू द सेलर, बिकॉज दिस इज एन अग्रीमेंट टू सेल. ठीक है, तो ये थे डिफरेंसेस बिटवीन सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल. आगे देखते हैं फॉर्मेलिटीज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. तो क्या है फॉर्मेलिटीज? एज सच तो वैसे कोई रेगुलर ऐसी फॉर्मेलिटी फॉर मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऐसी कोई फॉर्मेलिटीज नहीं है, लेकिन सेक्शन 5 जो है ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, उसने कुछ प्रोविजंस मेंशन किए हैं. लाइक देयर हैज टू बी ऑफ इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो हमने देखे थे, दैट देयर हैज टू बी वैलिड ऑफर टू बाय और सेल, देयर हैज टू बी एक्सेप्टेंस, वो एक्सप्रेस मैनर में हो सकता है, इम्प्लाइड मैनर में हो सकता है. The offer to buy or sell must be regarding movable property such as goods. Then the delivery of the goods may be immediate or later, that is according to the terms of the agreement. The payment of the price of the goods may be immediate either before the delivery of the goods or at the time of the delivery or in the future. तो ये parties decide करेंगे कि payment कब होनी है, delivery कब होनी है, and subject to provisions of any law for the time being in force, contract of sale may be made in writing or by word of mouth or partly in writing, partly by word of mouth. It may be implied or so contract of sale can be express or implied. Correct? Then there are some sales which are prohibited, which are not allowed itself. In certain cases, the sale of goods are prohibited by statute. Statute का मतलब है written law. Such a prohibition means prohibition का मतलब है you are prohibited, you are not allowed, because ये orders है किसके? Government के. तो इसके लिए क्या आप कभी भी ऐसे चीज़ें बाय नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, या सेल कर सकते, you need a license for it. Such a prohibition may render the contract itself illegal. अगर लॉ ने कहा है ये illegal है without a license, then can you buy them? अगर लॉ ने कहा है you cannot sell them without a license and you sell them, is it illegal? Yes. तो क्या है? कौन से the sale is of which goods is considered prohibited sales? That means you can sell them only under permission या license. Sale or exposure for sale of goods bearing a forged trademark हो, it is an offence. अगर आप किसी का trademark, copyright, copy करके वो goods sell कर रहे हो खुद पे नाम पे, then it is wrong. And in such cases, licenses may be required for sale of certain goods like intoxicating liquor, radioactive substances, explosives, poison. इन सब के लिए लगती है आपको licenses, वरना आप नहीं sell कर सकते. फिर है इंटरनेशनल सेल्स. इंटरनेशनल सेल्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कुछ रूल्स है. डिस्प्यूट्स में अराइज इन द केस ऑफ इंटरनेशनल सेल्स वेयर मोर देन वन कंट्री इज इन्वॉल्व्ड. Thus, an Indian merchant, if वो enter कर रहा है into an agreement with a buyer in the US for the sale of kurtas, जो ladies कुर्ते होते हैं उनके लिए, the delivery is to be made in England and the payment to be made in France. बहुत complicated है ये केस, देखते. लेकिन Indian merchant है, उसने Indian merchant माने वो seller Indian merchant है, buyer is in the US, delivery होने वाली है इंग्लैंड में और पेमेंट होने वाला है फ्रांस में. Now, in such a case, if a dispute arises, कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, तो
question arises in case of such an agreement as to which of the 4 legal systems would apply. इंडियन लॉ विल अप्लाई, यूएस लॉ विल अप्लाई क्योंकि सेलर इंडिया में है, बायर यूएस में है, गुड्स की डिलीवरी हो रही है इंग्लैंड में, इंग्लिश लॉ विल बी एप्लीकेबल, या मनी पेमेंट हो रहा है फ्रांस में, फ्रेंच लॉ इज एप्लीकेबल. यहाँ पे लॉ इतना ही कहता है, इट इज ओपन टू द पार्टीज टू अग्री एक्सप्रेसली इन द कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ or as to which substantive law will apply if the disputes arise between them. Parties ने पहले से डिसाइड करके रखना चाहिए, लेकिन as far as the procedural law is concerned, for instance admissibility of evidence कहाँ पे है, किसने कब क्या किया, question is usually decided by lex fori, that means the law of the place where the suit is filed. अगर कुछ dispute होती है and a dispute is filed in France, तो द फ्रेंच लॉ इज एप्लीकेबल. अगर डिस्प्यूट केस फाइल होता है इंग्लैंड में तो इंग्लिश लॉ इज एप्लीकेबल. केस फाइल होता है यूएस में तो यूएस लॉ इज एप्लीकेबल. एंड अगर इंडियन कोर्ट्स में केस फाइल होता है तो इंडियन लॉ इज एप्लीकेबल. देन लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स. पहले तो अगर इट इज़ इन केस इट इज़ सेक्शन 7 जो है सेल ऑफ गुड्स का, वो कहता है कि अगर इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ स्पेसिफिक असर्टेन गुड्स. अब व्हाट आर स्पेसिफिक असर्टेन गुड्स? स्पेसिफिक असर्टेन गुड्स वो होते हैं जो बायर ने ऑलरेडी आइडेंटिफाई किए हैं, सिलेक्ट किए हैं, स्पेसिफाई किए हैं कि मुझे यही गुड्स चाहिए और कुछ भी नहीं. स्पेसिफाई किया है कि ऑफ ऑल द लैपटॉप्स मुझे यही लैपटॉप चाहिए, सिलेक्ट किया है, आइडेंटिफाई किया है, उसे वही वाला चाहिए, उसे कहते हैं स्पेसिफिक असर्टेन गुड्स. तो अगर ये कॉन्ट्रैक्ट है ऑफ स्पेसिफिक असर्टेन गुड्स, लेकिन विदाउट एनी फॉल्ट ऑफ द बायर और द सेलर द गुड्स हैव पेरिश्ड, have been destroyed or they have been stolen, ऐसे कुछ भी हुआ है, then the law says the contract of sale is void. ये void हो जाता है because of impossibility of performance. Why is it impossible to perform? Because goods have perished. कौन से goods? Specific ascertain goods. Either they have perished, they have been destroyed, they are damaged, they are stolen without any fault of the buyer or seller. तो actually क्या है, तो the contract of sale has become absolutely void and it is void ab initio क्योंकि this has happened at the time of the contract. तो ये कभी contract बनता ही नहीं है in reality. It is a void agreement. Okay? And section 7 इसके बारे में कहता है, लेकिन section 8 कहता है अगर ये agreement to sell है and before this agreement to sell becomes a contract, that means becomes a sale, जहाँ तो अभी तक agreement to sell है, ownership अभी नहीं ट्रांसफर हुई है बायर को, agreement to sell है, goods कौन से है, specific ascertain goods है, and the goods have perished, damaged or they have been stolen without any fault of the buyer or seller, and before it has become a sale, means before ownership is transferred, the law say अभी ये agreement to sell has become void. क्यों? Because goods specific ascertain थे, यही वाले goods चाहिए थे, वही goods अगर damage हो गए हैं without fault of buyer or seller, how can you sell? Correct? तो here the agreement to sell has become void. Effect दोनों का वही है. पहले था the contract of sale has become void because of impossibility of performance. यहाँ पे agreement to sell has become void because of impossibility of performance. फिर है price. अभी price जो है in the contract of sale, law कहता है कि अगर दोनों parties ने at the time of the contract प्राइस फाइनल नहीं की है, if they have not decided on the price at the time of contract, it's okay. प्राइस अभी डिसाइड नहीं हुई है, no problem. It will not mean that it is uncertain. It is a valid contract. लेकिन लॉ इतना ही कहता है as per section 9, at least a certain
how you are going to fix the price. Even if you don't fix the price, it's okay, but at least ascertain the mode or manner in which you are going to fix the price. तो section 9 क्या कहता है? Price can be fixed by the contract itself, which is the most common method in the business transaction. Under the contract, the time is fixed. या parties may stipulate that the price shall be fixed in an agreed manner, or for instance the market price of a particular day or the manufacturer's price list in a given day. Parties के ऊपर है. या it may be fixed in the course of dealings between the parties. आगे जाके जैसे जैसे उनका ट्रांजैक्शन बढ़ता है और इन द कोर्स ऑफ द ट्रांजैक्शन वो कहते हैं अभी प्राइस नहीं डिसाइड हुआ, बाद में करते हैं, नो प्रॉब्लम. या प्राइसेस ऑफ सम कमोडिटीज मे बी फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट और द रेलिवेंट मार्केट अथॉरिटीज. गवर्नमेंट क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का नया टैक्स आने वाला है, उस हिसाब से द गवर्नमेंट विल डिसाइड द प्राइस. तो प्राइस ऊपर जाएगी बिकॉज ऑफ लेवी और टैक्स, और या गवर्नमेंट हैज टेकन आउट द टैक्स. देन सेक्शन 9 कहता है द रीजनेबल प्राइस वुड बी पेएबल by the buyer if the price is not ascertained in any of the above mentioned ways. तो अगर course of dealings में नहीं हुआ है, during the contract नहीं हुआ है, by government नहीं हुआ है, अगर ऐसे कुछ नहीं हुआ है, then the buyer will have to pay a reasonable price to the seller. लेकिन अभी reasonable price का मतलब क्या है? Reasonable price is a question of fact which is dependent on the circumstances of each particular case. Okay, so it may not necessarily be the market price, it will depend upon each particular case. Section 9 subsection 2 हमें ये बताता है. और लास्ट ये है कि that it has been held that in cases where the price is to be calculated according to the weight या measurement of the goods, but the property in the goods has already passed to the buyer even before the goods are weighed or measured. If the goods are accidentally destroyed, then before the price has been worked out, the court may order the payment of an estimated price going by such evidence as is available to the court. तो क्या हुआ है यहाँ पे इस सिचुएशन में? अभी तक प्राइस कैलकुलेट नहीं की गई है. क्यों? क्योंकि प्राइस विल बी कैलकुलेटेड डिपेंडिंग ऑन द मेजरमेंट और वेइंग ऑफ द गुड्स. लेकिन गुड्स ऑलरेडी बायर के पास, the property in the goods has already passed to the buyer. उसको ओनरशिप मिल गई है गुड्स की, लेकिन अभी प्राइस फिक्स नहीं हुई है. प्राइस विल बी फिक्स्ड ओनली आफ्टर मेजरिंग. ओके, तो यहाँ पे अगर वैसे गुड्स जिनकी ओनरशिप तो बायर के पास है लेकिन अभी तक प्राइस फिक्स नहीं हुई है और वो गुड्स अगर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, देन द लॉ सेज एक्सीडेंट की वजह से अगर डिस्ट्रॉय होते हैं, देन कोर्ट्स may order the payment of estimated price. तो ऐसे तो नहीं है ना, बायर के पास ओनरशिप है और एक्सीडेंटली वो गुड्स अभी डिस्ट्रॉय हो गए और जिनकी प्राइस फिक्स नहीं है, तो वो ये नहीं कह सकते ना कि गुड्स भी नहीं है, डिस्ट्रॉय हो गए, प्राइस भी फिक्स नहीं है. तो लॉ यहाँ कहता है एस्टिमेटेड प्राइस विल बी फिक्स्ड बाय द कोर्ट. अग्रीमेंट टू सेल एट वैल्यूएशन. अगर parties agree to sell and buy the goods on the terms that price is to be fixed by the valuation of a third party, ऐसा भी हो सकता है. Not by the terms of the contract, not by the future dealings, not by government के tax. Parties कहते हैं पहले third party को evaluate करने दो, then let third party fix the price. Neither the buyer nor the seller is fixing the price. तो थर्ड पार्टी उन्होंने कहा है फिक्स करेगी प्राइस. तो अगर सेलर को सेल करने हैं सम गुड्स टू द बायर, लेकिन सेलर कहता है आई कैन नॉट डिसाइड द प्राइस बिकॉज द गुड्स विच आई एम सेलिंग आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दैट. तो लेट्स से दैट आपके घर में है एक बहुत ही पुरानी पेंटिंग जो इट हैज़ बीन इन योर हाउस फॉर जनरेशंस. अभी ये दैट पेंटिंग मे बी अबाउट 100 years ओल्ड, और आप यू वांट टू सेल दैट पेंटिंग, लेकिन आप यू आर नॉट एबल टू डिसाइड द प्राइस. क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं है वैल्यू ऑफ दैट पेंटिंग. आपको सिर्फ इतना ही पता है दैट इज अ वेरी ओल्ड पेंटिंग. जो बायर है हु इज रेडी टू बाय इट, ही ऑल्सो कैन नॉट डिसाइड द प्राइस. तो अभी क्या करेंगे? तो दोनों कहते हैं क्यों ना जाए एक एक्सपर्ट के पास हु इज एन एक्सपर्ट इन दीज पेंटिंग्स, उसको देखने दो. लेट हिम एग्जामिन द कैनवस, लेट हिम एग्जामिन द पेंटिंग,
वो जैसे कहेगा वी विल फिक्स द प्राइस। तो दिस इज वैल्यूएशन बाय द थर्ड पार्टी। और अगर ऐसे प्राइस डिसाइड होनी है, इफ सच थर्ड पार्टी कैन नॉट or does not make such a valuation, the agreement becomes void. But agar goods or any part of the goods have already been delivered and appropriated by the buyer, अगर वो पेंटिंग वो एक्सपर्ट ने देख ली और वो बोला अच्छा ठीक है मैं प्राइस फिक्स करता हूँ, और वो पेंटिंग ऑलरेडी दे दी बायर को, एंड नाउ ड्यू टू सम रीजन थर्ड पार्टी इज अनेबल टू फिक्स द प्राइस, तो लेकिन गुड्स आर ऑलरेडी विद द बायर, देन द बायर शैल पे अ रीजनेबल प्राइस देयर ऑफ। लेकिन अगर थर्ड पार्टी को प्रिवेंट किया गया है फ्रॉम फिक्सिंग द प्राइस, अगर प्राइस इज गोइंग टू बी फिक्स्ड बाय द थर्ड पार्टी, लेकिन सेलर ने वो पेंटिंग वो एक्सपर्ट के पास भेजी नहीं, थर्ड पार्टी के पास, तो वो कैसे प्राइस फिक्स करेगा? तो यहाँ पे सेलर इज प्रिवेंटिंग द एक्सपर्ट थर्ड पार्टी फ्रॉम फिक्सिंग द प्राइस। तो यहाँ पे if the party is prevented from making the valuation by the fault of the seller or the buyer, the party who is not in fault, that is innocent party, may maintain suit for damages against the party in fault. तो अगर seller ने prevent किया है from third party from fixing the price, then who is at a fault? Seller. Who is party not at fault? Buyer. Then buyer can file a suit against the seller for damages. Okay. Then stipulations as to time. टाइम के जो स्टिपुलेशंस है वो अभी देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11, अभी टाइम जब हम कहते हैं, कौन सा टाइम, व्हाट काइंड ऑफ टाइम आर वी रिफरिंग टू? इट कैन बी टाइम ऑफ पेमेंट, इट कैन बी टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, इट कैन बी टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ द गुड्स, ये सब है ना टाइम। So stipulations as to time in a contract of sale may be stipulations relating to time of payment. Now these are not of the essence in a contract of sale unless a different intention appears. तो stipulation as to time of payment, अगर parties ने ऐसे कुछ decide नहीं किया है time of payment बहुत crucial है to transfer of ownership, तो अगर उन्होंने decide किया time of payment बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, then it is not of essence. लेकिन अगर पार्टीज ने कहा नहीं नहीं पहले आपको कंडीशन डालिए, नहीं पहले आपको पेमेंट ही देना है, जिस टाइम पे पेमेंट आएगा फ्रॉम द बायर टू द सेलर, दैट इज द टाइम द सेलर विल गिव द ओनरशिप। तो ऐसे केस में सेलर ओनरशिप नहीं देगा जब तक बायर पेमेंट ना दे। तो यहाँ पे दे हैव मेड टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ वेयर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इसेंस, लेकिन यहाँ पे लेकिन नॉर्मली ऐसे नहीं हो सकता unless they have decided. Then stipulations not relating to time of payment, like delivery of the goods, etc. As regards these stipulations, time may be of the essence of the contract, but this essentially depends on the terms of the contract. What is the meaning of contract where time is of essence? क्या आपको याद है when we did it under the chapter of performance in the Indian Contract Act? Contracts where time is of essence. टाइम इज ऑफ इसेंस का मतलब है टाइम ऑफ परफॉर्मेंस इज वेरी वेरी क्रूशियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पार्टी सिर्फ टाइम फिक्स करते हैं कि ठीक है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विल टेक प्लेस ऑन ट्यूसडे बाय 10 o'clock, तो ये टाइम तो फिक्स हो गया है, लेकिन वी डोंट नो इफ दैट कॉन्ट्रैक्ट हैज टू बी परफॉर्म्ड इन दैट टाइम और नो। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है या नहीं है ये नहीं पता। So when will we say that time is of performance is of essence? When there is express agreement between the partners, between the parties. तो अगर टाइम फिक्स कर दिया है और प्रोमिसी ने प्रोमिसर को बताया यू बेटर परफॉर्म ऑन दैट टाइम, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है ऑफ परफॉर्मेंस, और अगर यहाँ पे प्रोमिसर करेगा डिले इन परफॉर्मेंस, देन प्रोमिसी को राइट्स है टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम डैमेजेस। लेकिन अगर सिर्फ टाइम फिक्स कर दिया है, टाइम ऑफ परफॉर्मेंस बहुत क्रूशियल नहीं है, एंड द प्रोमिसर डिलेज, then the promisee can only claim damages for delay. He cannot cancel the entire contract. तो यहाँ पे अगर whether delivery of the goods
बहुत ज़्यादा वो टाइम ऑफ डिलीवरी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या नहीं है, इज इट ऑफ इसेंस और नॉट ऑफ इसेंस, दैट विल डिपेंड अपॉन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. In a contract of sale, stipulations other than those relating to the time of payment are regarded of essence. Okay? And लेकिन अगर time of delivery of essence है, and if the goods are not delivered on time, then buyer has a right to cancel the entire contract and claim damages. Okay? अब देखते हैं अगर इंक्रीज या डिक्रीज इन सेल्स टैक्स या कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी में अगर होता है तो क्या होता है. तो if any sales tax, customs duty or excise is imposed or increased after making of the contract, the seller is entitled to add it to the contract price. And if the taxes is decreased or remitted after making of the contract, फिर buyer can deduct such amount from the contract price. अभी हम देखेंगे दैट कैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल थोड़ा सा डिफरेंट है फ्रॉम अदर टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. ओके, लाइक हायर परचेज. हायर परचेज का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट जहां पे आप हायर भी करते हो एंड देयर इज एन अग्रीमेंट टू परचेस इट ऑल्सो. ओके, सो हायर का मतलब क्या है? टू टेक इट ऑन रेंट. जहां पे अग्रीमेंट हो सकती है बिटवीन ए एंड बी जस्ट फॉर हायर. तो अगर आपने गुड्स हायर किए हैं अभी तो आपको पता है बहुत सारे ऐसे गुड्स हैं जिनको आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है. आप क्या कर सकते हो? हायर पे ले सकते हो. होम अप्लायंसेज यू कैन हायर, टेक देम ऑन हायर बेसिस, यू डोंट हैव टू बाय देम. एग्जाम्पल ले लो कि आप ड्यू टू वर्क आपकी ट्रांसफ़र हो जाती है एक नई सिटी में. तो आप नए सिटी में रहने वाले हो 2 महीने के लिए. तो 2 महीने के लिए अगर आप उस कंपनी के फ्लैट में या फ्लैट रेंट पे लेके रह रहे हो, आपको चीज़ें चाहिए, गुड्स चाहिए टू यूज़ इन योर हाउस, तो आपको एक रेफ्रिजरेटर लगेगा या यूल से टीवी लगने वाला है. आपको आप 2 महीने के लिए तो जा रहे हो, यू डोंट वांट टू टेक ऑल योर ओन थिंग्स फ्रॉम योर ओन हाउस ओवर देयर. तो आप क्या करते हो? आपको नए भी नहीं खरीदने, क्योंकि क्या करना है खरीद के, 2 महीने की तो बात है. तो कैन यू टेक दीज गुड्स ऑन हायर बेसिस? आप हायर कर सकते हो क्या? ऑफ कोर्स यू कैन हायर. तो 2 महीने के लिए आप गुड्स, एक रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन, माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन हायर पे लेते हो फ्रॉम एन एजेंसी एंड एवरी मंथ यू हैव टू पे देम अ रेंट. हायर चार्जेस आपको पे करने, वो है हायर अग्रीमेंट. लेकिन अगर आपको वो चीज़ें पसंद आ गई and when you have hired them from the agency, आप उनको ये भी कहते हो that you are ready to purchase them also. आप hire तो कर रहे हो, use तो कर रहे हो, लेकिन you have also expressed a desire to buy them. तो those goods, it is called as hire purchase, and those goods will be, ownership उन goods की will be transferred to you only after you have paid the last installment. ओके, तो आप चीज़ें आप हायर पे तो यूज़ कर रहे हो, लेकिन अभी आपको वो खरीदने हैं. तो आपका जो अग्रीमेंट बना है, लेट्स से नाउ अगर आपने सिर्फ हायर किए हैं चीज़ें पहले, तो आप पे कर रहे हो मे बी 1000 रुपीज़ पर मंथ फॉर द यूज़ ऑफ ऑल दीज थिंग्स. लेकिन आप अभी वो एजेंसी को कहते हो दैट आई वांट टू बाय द रेफ्रिजरेटर, तो आप 1000 रुपये में तो नहीं बाय कर सकते ना. तो वो कहता है ठीक है, यू कैन यूज़ इट फॉर 10 months और द कॉस्ट ऑफ द रेफ्रिजरेटर इज 15,000 रुपीज़ एंड देन आई विल रिकवर दिस मनी फ्रॉम यू इवन इन द मंथली इंस्टॉलमेंट. लेकिन ओनरशिप आपको अभी नहीं ट्रांसफर होगी. ओनरशिप विल बी गिवन ओनली आफ्टर यू हैव पेड द लास्ट इंस्टॉलमेंट. आपने 8 इंस्टॉलमेंट दे दिए, बाकी के 2 नहीं दिए, आपके पास ओनरशिप आ गई? नहीं आई. यू विल नॉट गेट द ओनरशिप. ओके, तो डिफरेंसेस देखते हैं बिटवीन सेल एंड हायर परचेस. लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड, हायर परचेस में ओनरशिप कब मिलेगी? ओनली व्हेन यू हैव एक्सप्रेस द डिजायर ऑफ नॉट जस्ट टू हायर बट ऑल्सो परचेस. ओके, and when you have paid the last installment. Sale में ownership is transferred from the seller to the buyer as soon as the contract is made. क्योंकि ये सेल है, ownership is transferred at the time of making of the contract. तो buyer बन गया owner,
हायर परचेस में ownership is transferred from the seller to the hire purchaser only when a certain agreed number of installments is paid. Then position of the parties. Sale में position of buyer is that of the owner because ये sale है, उसके पास already ownership है. लेकिन position of hire purchaser is that of a bailee. Bailee का मतलब क्या है? Bailee आता है in a contract of bailment, वो भी हम देखने वाले हैं. Bailment का मतलब है contract जहाँ पे bailor has given only the possession of the goods to the bailee for a specific purpose. Purpose achieve होने के बाद the bailee has to return the goods to the bailor. तो यहाँ पे क्या होता है? bailment में सिर्फ स्पेशल प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, जिसका मतलब है ओनली possession is given, ownership is not given. तो इन हायर परचेज possession दिया गया है of the goods. You can use the refrigerator, you can use the AC, you can use the television, but you are not the owner. Ownership आपको मिलेगी only after payment of the last installment. Possession of the goods. Possession का मतलब क्या है? उसका मतलब है physical custody. Possession and ownership अलग concepts है. Ownership का मतलब है when the property is transferred to the other person. Possession का मतलब है you are giving only the physical custody of the goods. So ownership can be given with ownership and possession. आप goods भी दे रहे हो, फिजिकल कस्टडी, पोजेशन भी दे रहे हो, ओनरशिप भी दे रहे हो, टाइटल भी दे रहे हो. या पोजेशन में क्या होता है? सिर्फ गुड्स दे रहे हो, सिर्फ फिजिकल कस्टडी दे रहे हो, ओनरशिप नहीं दे सकते, नहीं दे रहे हो. तो पोजेशन इन केस ऑफ सेल, ओनरशिप इज विद द बायर बट पोजेशन कैन बी विद द सेलर. लेकिन हायर परचेज में वो पहले गुड्स आपको दे देता है लेकिन ओनरशिप नहीं देता. ओनरशिप देगा बाद में जब आप इंस्टॉलमेंट्स दे देते. तो अभी तो उसने ऑलरेडी यूज करने के लिए आपको वो रेफ्रिजरेटर, एसी, वो सब गुड्स आपको ऑलरेडी दे दिए. पोजेशन आपके पास है लेकिन ओनरशिप आपके पास नहीं है. टर्मिनेशन. अगर जब बायर को ऑलरेडी ओनरशिप मिल गई है, ही कैन नॉट टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट एंड एज सच ही इज बाउंड टू पे द प्राइस ऑफ द गुड्स. अगर वो ओनर ऑलरेडी बन गया है, he cannot now terminate the contract because he is already the owner. Hire purchaser has the option to terminate the contract at any stage and cannot be forced to make any further installments. वो लास्ट इंस्टॉलमेंट अगर उनमें अग्रीमेंट है दैट द गुड्स आर ऑन हायर परचेज बेसिस एंड द हायर परचेसर हैज़ टू पे 3,000 रुपीज़ पर मंथ एज इंस्टॉलमेंट्स फॉर 1 year. अगर वो चाहे उसको ओनरशिप मिलेगी ओनली आफ्टर ही हैज़ पेड द लास्ट इंस्टॉलमेंट दैट इज द 12th इंस्टॉलमेंट ऑफ 3,000 रुपीज़. अगर उससे पहले 1 साल के पहले ही अगर उसको ये टर्मिनेट करना है कॉन्ट्रैक्ट तो वो ही विल स्टॉप पेइंग द इंस्टॉलमेंट्स. वो कैंसिल कर सकता है. क्यों? क्योंकि अभी उसके पास ओनरशिप नहीं आई है. सेल में बायर के पास ऑलरेडी ओनरशिप आई है इसलिए वो कैंसिल नहीं कर सकता. इंस्टॉलमेंट्स. सेल में इफ द पेमेंट इज मेड बाय द बायर इन इंस्टॉलमेंट्स द सेड अमाउंट, अगर बायर कहता है सेलर को कि आई विल मेक द पेमेंट इन 2 इंस्टॉलमेंट्स, पहला इंस्टॉलमेंट ऑफ द टोटल कॉस्ट विच द बायर हैज टू पे द सेलर, लेट्स से 7,000 रुपीज. अभी बायर कहता है ये जो 7,000 है आई विल पे टू यू इन 2 इंस्टॉलमेंट्स, पहला इंस्टॉलमेंट ऑफ 5,000 एंड सेकेंड इंस्टॉलमेंट ऑफ 2,000. तो जब बायर पहला इंस्टॉलमेंट 5,000 का देता है, ये जो इंस्टॉलमेंट है ये अप्रोप्रिएट होगा टू द फुल पेमेंट. अगर फुल पेमेंट इज ऑफ 7,000, वो जो 5,000 उसने दिए है पहले वो माइनस कर दिए जाएंगे, विल बी अप्लाइड टू दैट. अप्रोप्रिएटेड का मतलब मैंने आपको बताया एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट, करेक्ट. तो वो अप्लाई होगा 5,000 टू क्लियरिंग द टोटल कॉस्ट, राइट, माइनस हो जाएगी फ्रॉम द टोटल कॉस्ट. नाउ द बायर हैज टू पे ओनली 2,000 रुपीज मोर, 2,000 रुपीज मोर. लेकिन हायर परचेस में क्या होता है? द इंस्टॉलमेंट्स विच आर पेड बाय द हायर परचेसर आर रिगार्डेड एज हायर चार्जेस एंड नॉट एज पेमेंट.
towards the price of the goods till the option to purchase the goods is exercised. जब तक वो परचेज का ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करता, वो जो मंथली इंस्टॉलमेंट दे रहा है, दे आर जस्ट रिगार्डेड एज हायर चार्जेस. वो दे आर नॉट गोइंग टू बी अप्रोप्रिएटेड टू एनी कॉस्ट. Then right to retain possession. In a sale, once the possession of the goods is transferred to the buyer, the seller again cannot get the goods back. लेकिन अगर goods seller के पास ही है और buyer अगर owner है, because it is a sale, and buyer has become insolvent and seller has become unpaid, then he can keep the goods with him till buyer makes payment. लेकिन अगर possession has already been, goods भी दे दिए, ownership भी दे दिया, अब seller cannot get the goods back. लेकिन हायर परचेस में ओनरशिप दी नहीं है ना अभी हायर परचेसर को. उसके पास क्या है? उसके पास सिर्फ गुड्स है, उसके पास सिर्फ पोजेशन है, ओनरशिप नहीं है. तो अगर ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता है, यानी वो बाकी के इंस्टॉलमेंट्स नहीं देता, वो जो ओनर है इन केस ऑफ हायर परचेस, कैन ही गेट द गुड्स बैक फ्रॉम हिम? यस. सो ओनर इन हायर परचेस, ओनर कैन रीगेन पोजेशन ऑफ द गुड्स if the hirer defaults in payment of installment. अगर उसने एक इंस्टॉलमेंट नहीं पे की, वो जो सेलर है, ओनर है, वो उसको वार्निंग देगा कि आपकी इंस्टॉलमेंट बाकी है. फिर भी अगर वार्निंग देने के बाद, नोटिस देने के बाद भी अगर उसने पेमेंट नहीं की, then he will have, the owner has a right to get the goods back. Transfer of title to third party. इन केस ऑफ सेल ओनर कौन है? बायर है. तो अगर वो बायर है, ही हैज जस्ट इन रेम, वो गुड्स के साथ कुछ भी कर सकता है. क्या वो वही गुड्स, कैन ही सेल देम टू अ न्यू बायर एंड ट्रांसफर अ गुड टाइटल टू द न्यू बायर? यस. कैन ही प्लेज द गुड्स एंड बोरो मनी ऑन द गुड्स? यस, क्योंकि उसके पास राइट ऑफ रेम है, वो कुछ भी कर सकता है. ओके. लेकिन हायर परचेस में जो हायर परचेसर है, उसके पास सिर्फ गुड्स है, उसके पास ओनरशिप नहीं है. सो कैन ही प्लेज दोज गुड्स? कैन ही सेल द गुड्स? नो, ही कैनॉट डू दीज थिंग्स. Installments. In case of sale, if installments payment is made by the buyer in installments, the said amount is appropriated towards the price of the goods. और हायर परचेस में इंस्टॉलमेंट्स पेड बाय द हायरर आर रिगार्डेड एज हायर चार्जेस. ठीक है, हमने ऑलरेडी ये देख लिया ये डिफरेंस. देन अब आगे देखते हैं. ये तो हो गए डिफरेंसेस बिटवीन सेल एंड हायर परचेस अग्रीमेंट. नाउ वील अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड बेलमेंट. बेलमेंट का मतलब है व्हेन टू पार्टीज होते हैं. जैसे सेल में है दो पार्टीज, बायर एंड सेलर. बेलमेंट में भी है दो पार्टीज. बेलमेंट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट विच कम्स अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एक्ट ऑफ 1872. तो आपके फाउंडेशन के सिलेबस में आप ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ेंगे. यू आर गोइंग टू स्टडी दिस अलॉन्ग विथ प्लेज, अलॉन्ग विथ गारंटी, अलॉन्ग विथ इंडेमनिटी एंड एजेंसी इन योर CA इंटरमीडिएट कोर्स. ओके. तो बेलमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन टू पार्टीज, बेलर एंड बेली. दो पार्टीज है. तो जो बेलर है, ही इज एक्चुअली द ओनर ऑफ द गुड्स, और वो फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस वो क्या कर रहा है, उन गुड्स की कस्टडी, मतलब फिजिकल पोजेशन ऑफ द गुड्स दे रहा है बेली को. वो बेच रहा है गुड्स नहीं. ही इज जस्ट गिविंग द कस्टडी, दैट इज पोजेशन ऑफ द गुड्स टू द बेली फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस. और वो पर्पस पूरा होने के बाद बेली की ड्यूटी है दैट ही मस्ट रिटर्न द गुड्स टू द बेलर. क्योंकि बेलर ने सिर्फ कस्टडी दी है, ओनरशिप नहीं दी है. इसे हम कहते हैं ट्रांसफर ऑफ स्पेशल प्रॉपर्टी. करेक्ट. तो जब आप आपकी बाइक, आपकी मोटर बाइक या आपकी कार गैरेज में देते हैं फॉर सर्विसिंग पर्पस, तो आपने क्या किया है, कार दे दी. आपने कार की ओनरशिप दी नहीं, सिर्फ पोजेशन दी है टू द गैरेज फॉर अ पर्पस. पर्पस क्या है, सर्विसिंग का. तो आप है बेलर और गैरेज वाले है बेली. उनको दे विल हैव टू कंप्लीट द पर्पस, दैट इज सर्विसिंग. सर्विसिंग कंप्लीट होने के बाद
Can they keep the car with them? No, they will have to return the car या bike to you, and in return what do you have to give them? You have to pay them the charges. Okay, bailment के जो charges है आपके, servicing charges उनके देने पड़ेंगे. तो that is bailment. Okay, तो सिर्फ ownership आप नहीं दे रहे हो, you are giving just the possession. Sale. सेल में ओनरशिप द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर. तो बायर को हो गई ओनरशिप, ऑलरेडी मिल गई. बेलमेंट में देयर इज ओनली ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम द बेलर टू द बेली. देन सेल में द बायर कैन डील विद द गुड्स इन एनी वेज ही वांट्स, बिकॉज वो तो ओनर है, उसे है जस्ट इन रेम, ही कैन डू एनीथिंग. लेकिन बेली कैन नॉट डू दैट. जो गैरेज वाले वो बाइक के साथ या कार के साथ कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनकी है ही नहीं. उनके लिए उनको दी गई है फॉर अ पर्पस, तो उनको सिर्फ सर्विसिंग करना है उसका. एंड दे हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ द बेलर. बेलर ने जो कुछ कहा है उनको उतना ही करना है. देन इन सेल द गुड्स आर नॉट टू बी रिटर्न्ड टू द सेलर बाय द बायर, क्योंकि बायर के अभी गुड्स हो गए हैं, ही इज नॉट गोइंग टू रिटर्न देम टू द सेलर. लेकिन बेलमेंट में बेली को वो गुड्स आफ्टर द पर्पस इज फुलफिल्ड रिटर्न करने ही पड़ेंगे टू द बेलर. तो सर्विसिंग के बाद गैरेज वालों को रिटर्न करनी ही पड़ेगी आपकी बाइक या कार. प्राइस इज पेड इन मनी एज कंसिडरेशन फॉर अ सेल. लेकिन बेलमेंट कैन ऑल्सो बी ग्रेट्यूशियस बेलमेंट. ग्रेट्यूशियस का मतलब है फ्री, यानी आप बेलर ने बेली को गुड्स दिए फॉर अ पर्पस, पर्पस अचीव भी हो गया, लेकिन ही हैज डन इट फ्री ऑफ कॉस्ट. उसने आपसे कोई भी कॉस्ट रिकवर नहीं किया. सो इट कैन बी ग्रेट्यूशियस या नॉन ग्रेट्यूशियस. जब आप बाइक या कार देते हो सर्विसिंग के लिए और वो लेता है सर्विस चार्जेस, दैट इज नॉन ग्रेट्यूशियस बेलमेंट. वो फ्री नहीं है. लेकिन ऐसे हो सकता है कि फ्री भी हो सकता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल आपके घर में है एक फिश पॉन्ड जिसमें फिश है आपके, ओके, और आप एक हफ्ते के लिए बाहर जा रहे हो एंड यू वॉन्ट समवन टू टेक केयर ऑफ योर फिश टैंक. तो आपके नेबर्स बहुत अच्छे हैं, तो आप रिक्वेस्ट करते हो आपके नेबर को दैट प्लीज़ कैन यू टेक केयर ऑफ द फिश एंड द टैंक फॉर 1 वीक फॉर मी बिकॉज आई एम गोइंग आउट. तो नेबर कहते हैं एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, वी विल बी डिलाइटेड टू टेक केयर ऑफ इट. तो आप क्या कर रहे हो? आप बेलर हो, आप दे रहे हो द फिजिकल कस्टडी ऑफ द आपके फिश टैंक और फिश आपके नेबर को टू टेक केयर. अभी आप एक हफ्ते बाद जब आप आते हो, योर नेबर इज नॉट टेकिंग एनी मनी फ्रॉम यू, सो इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट. सो ये क्या है? ग्रेट्यूशियस बेलमेंट है. एंड देन वी हैव डिफरेंसेस बिटवीन, ये जो लास्ट है अपना, डिफरेंसेस बिटवीन सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड मटीरियल्स, या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क, लेबर एंड मटीरियल्स. तो यहाँ पे सेल ऑफ गुड्स एक्ट अप्लाइज टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. It does not apply to a contract for work and materials. Contract of sale contemplates the delivery of the goods, whereas a contract for work and material involves the exercise of skill and labor by one party in respect of materials supplied by another. The delivery of goods being only subsidiary or incidental. Let's take an example. आपके घर में एक function है. Let's say there is a wedding in the family. And you want the full wedding के photographs to be taken by a photographer. तो आप उसको अपॉइंट करते हो and you tell him that you want the pictures to be, photographs to be taken. After the ceremony में वो पूरे आपके photographs निकालता है. After the ceremony he comes to you with the photographs and the bill. तो here is this sale of goods. नहीं, जो आप उसको पेमेंट दे रहे हो ना, दिस इज फॉर द वर्क विच ही हैज डन. यू आर नॉट बाइंग द फोटोग्राफ्स फ्रॉम हिम, करेक्ट? यू आर पेइंग हिम फॉर हिज सर्विस, द वर्क विच ही हैज डन. ओके, you appoint or you make a contract with an artist to make your portrait. तो he makes that portrait और आप उसको उसके charges दे रहे हो. You are not buying that painting from him, correct? So this is not sale of goods. You are paying him that money, उसके जो fees है, as for his skill, for his talent, for his labor. Okay? जब आपके पास gold है, that gold belongs to you.
that gold when you give it to a jeweler to make it into golden ornaments, और जब ornaments ready होने के बाद वो आपको देता है bill, that bill includes the cost of what? Making those ornaments, not the cost of gold. So you're not buying that from him, you are paying that money for his service, his skill, his talent. जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो and there you sit over there and you eat food and you take in that whole experience of eating over there, and जब आपको bill आता है, you are not paying for that is not payment for the food only na, you are paying for that whole experience. So that is not sale of goods, it is a contract of service. ठीक है, जब आप क्लॉथ देते हो टेलर को टू स्टिच इट इनटू अ ड्रेस या अ शर्ट, you are not buying that shirt or dress from the tailor, you are paying him for his service. So this is different from contract of sale, and these are the contracts of work, labor and materials. तो यहाँ in this first unit of हमारा नया एक्ट, that is the Sale of Goods Act 1930, हमने पहले शुरुआत तो की with the preliminary, then we went on to understand what is the meaning of contract of sale. फिर हमने देखे इसके essential elements, कैसे bilateral contract है, कैसे there are goods, there is a price, there is transfer of property, there is it can be absolute or conditional, there can be a mercantile agent in it, concept of insolvent, document of title, ये हमने देखे essential elements में. फिर document of title क्या होता है? Document of title is it is a written proof of ownership. Okay? फिर हमने देखे 5 types of documents of title. Then we went on to understand in detail subject matter. What is the subject matter? Goods. तो goods कितने तरह के होते हैं, and what will happen if it is a contract of sale या agreement to sell regarding specific a certain goods which are destroyed or damaged. इसमें हमने देखे section 7 and section 8. Then हमने देखे price, ascertainment of price कितना ज़रूरी है, who can fix the price, वो भी सब हमने देखा, even third party can fix the price. Then we went on to understand stipulations regarding time, time of payment या time of delivery, where time is of essence, where time is not of essence. फिर हमने देखे differences between sale and agreement to sell, and we also understood the differences between various other types of contracts like between sale and hire purchase, sale, bailment and sale and work and labor. So I hope that from this part and this discussion of us, you have understood about how a contract of sale is made and what are its essential elements and how it is different from others. So I hope you've understood and I hope you have liked it. So thank you very very much. आगे जाके हम देखने वाले हैं very very important conditions and warranties in a contract of sale. Thank you very very much.